Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Your sorrow will turn into joy today. Even as you join us in prayer, wherever you are, God is with you to do miracles for you. Tonight the Lord told me आज रात परमेश्वर ने मुझसे कहा है He is going to bless you as a family. और वो आपको परिवार के रूप में आशीष देगा. The Bible says in Psalm 68 and verse 6, भजन संहिता 68 वचन 6 में बाइबल इस तरह से कहती है, the Lord settles those who are lonely into families. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है. Do you say that you are lonely tonight? क्या आज आप ये कहते हैं कि आप अकेले हैं? God will set you into a family. परमेश्वर आपको परिवार देगा. Do you say, even though I have a family life, I'm lonely, I'm suffering? आप शायद ये कह रहे हैं कि हालांकि मेरे परिवार का जीवन है लेकिन मैं अकेला हूँ, दुख सह रहा हूँ. God is going to build your home tonight. परमेश्वर आज आपके घर को बनाएगा. He's going to settle the things in your family life. वो आपके परिवार के जीवन में सब कुछ बिल्कुल सही करेगा. He's going to build your home वो आपके घर को बनाएगा and give you joy in the family. और वो आपके परिवार में आनंद देगा. And your family will be a lighthouse. और आपका घर एक लाइट हाउस के जैसे होगा. Every darkness will leave you. हर एक अंधकार आपको छोड़कर चला जाएगा. God will give you prosperity in your home from today. परमेश्वर आज से आपके घर में संपन्नता देगा. For this he says और इसके लिए वो कहता है in 2 Corinthians 6 and verse 18, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 में, I will be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता हो जाऊंगा. I will make you my sons and my daughters. मैं तुम्हें मेरे बेटे और मेरी बेटियां बनाऊंगा. Yes, the Lord is taking over the responsibility of your life and becoming your father tonight. और परमेश्वर आपके परिवार की जिम्मेदारी ले रहा है और आज वो आपका पिता बन जा रहा है. Jesus will become your father tonight. आज रात यीशु आपका पिता होगा. He'll build your home. वो आपके घर को बनाएगा. He said that to David उसने ये दाऊद से कहा था. in 2 Samuel 7 and verse 11. दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 11 में The Bible says, बाइबल कहती है, God said to David, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, David, दाऊद, myself establish a house for you. मैं स्वयं तेरे लिए एक भवन, एक घर बनाऊंगा. That's why, according to God's word, even today the house of David stands. और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज भी दाऊद का जो भवन है वो अभी भी बना है. If you go to the country of Israel, अगर आप इज़राइल देश में जाते हैं, they will show you the flag of Israel. वो आपको इज़राइल का झंडा दिखाएंगे. And the flag has a star. और उस झंडे में एक तारा है. And the people will say, और लोग यही कहते हैं, this star is the star of David. ये तारा तो दाऊद का तारा है. Yes, it's the star of David. ये तो दाऊद का तारा है. It says we belong to the household of David. वो ये कहता है कि हम तो दाऊद के घराने के हैं. Yes, we believe that that star of David is Jesus Christ. हाँ, हम विश्वास करते हैं कि दाऊद का ये जो तारा है ये तो यीशु मसीह है. But God has established the house of David. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के घराने को स्थापित किया. It stands as a nation today. वो आज एक देश के रूप में खड़ा है. One of the strongest nations in the world. पूरे संसार में सबसे मजबूत देश के रूप में. It has produced the greatest and noble laureates in the world, people of great wisdom in the world. और इस देश ने तो सच में पूरे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों को उत्पन्न किया है.
Yes, God will build your house also. हाँ, परमेश्वर आपके घर को भी बनाएगा। Tonight Jesus has come for that. आज रात यीशु उसी के लिए आया है। You may say that your house is in shambles, your family is in shambles. आप शायद ये कहें कि आपका परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, But God is going to build your home लेकिन परमेश्वर आपके घर को बनाएगा tonight. आज। How does God build our home? परमेश्वर हमारे घर को कैसे बनाता है? If you read Genesis 2 and verse 7, अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7, there you read about how God formed the man. आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। How God created the first man, Adam. कैसे परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया था। The Bible says, बाइबल कहती है, the Lord God formed the man from the dust of the ground प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी में से बनाया and breathed into that dust. और उसने उस मिट्टी के पुतले में उसने श्वास फूंक दी। His nostrils उसके नथनों में was breathed the breath of life by God. परमेश्वर ने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका And the man became a living soul. और वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। God breathed into the nostrils of man and the man became a living soul. परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। But first, God formed man from the dust of the earth. लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी में से बनाया। How was the earth at that time? उस समय ये भूमि की जो मिट्टी थी कैसी थी? When God created the earth in Genesis 1 and verse 2, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, the Bible says it was formless. ये बाइबल कहती कि वो बेडोल थी, It was empty. वो खाली थी, वीरान थी। And there was darkness in its depth. और बाइबल कहती है कि उसके अंदर पूरा अंधकार था। Yes, the earth was formless. हाँ, पृथ्वी बेडोल थी, It was empty. वो बिल्कुल खाली थी And it was dark all around. और हर जगह अंधकार था। Maybe your life also may be like that. शायद आपका जीवन भी बिल्कुल इसी तरह से हो। You may say, my life is formless. आप शायद ये कहें मेरे जीवन में कोई आकार नहीं है, It's empty without any blessing. ये बिना आशीष के बिल्कुल मानो खाली है, It's all dark. ये पूरा अंधकार से भरी है, It's all dark. ये पूरे अंधकार से भरी है। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, as the earth was formless, empty, and dark, जैसे कि पृथ्वी बेडोल, सुनसान थी और अंधकार था, the Holy Spirit of God came upon the waters. पवित्र आत्मा जो है वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था। And in Psalm 104 verse 30 and 31, और भजन संहिता 104 वचन 30 और 31 में हम देखते हैं, the Holy Spirit came upon the earth and made it new, and it formed the earth and made it beautiful. पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी को बिल्कुल नया बनाया, इसे आकार देकर बहुत ही सुंदर बनाया। The Holy Spirit brought life upon the earth. पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर में जीवन लाया। The breath of God, परमेश्वर की श्वास, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, It is the same breath of God. ये तो परमेश्वर की वही श्वास It is है, the same Holy Spirit ये वही पवित्र आत्मा है, who came upon the man who was formed from the dust. ये तो उस मनुष्य के ऊपर आई जो कि मनुष्य मिट्टी से बना The था। dust which was made as the form of man was empty, formless, and dark. वो पुतला जो कि मिट्टी से बना हुआ था वो तो पूरी तरह से खाली था और सुनसान था और पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। But God sent His breath, लेकिन परमेश्वर ने अपनी श्वास उसमें His भेजी, Holy Spirit, अपनी पवित्र आत्मा। into that dust, the form of man. उसने मनुष्य की उस मिट्टी के पुतले में उसे भेजा। God's life came into that form. परमेश्वर का जीवन उसमें आ गया। God's life came into that muddy form of man, and he became a living soul, just like you and me. परमेश्वर का जीवन जो है वो उस मिट्टी के पुतले में आ गया और वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे जीवित प्राणी बन गया। And the Holy Spirit did not stop there. और पवित्र आत्मा वहीं पर नहीं रुका। After he created the man, उसने मनुष्य को बनाने के बाद he created the man to become just like the image of God. उसने मनुष्य को बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। Gave man the image of God. उसने मनुष्य को परमेश्वर का स्वरूप दिया।
In 2 Corinthians 3 and verse 18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में the Bible says, बाइबल कहती है, by His Spirit, उसकी आत्मा के द्वारा we are transformed from glory to glory into the image of His Son, Jesus Christ. हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में महिमा से महिमा में बदलते चले जाते हैं। Genesis 1:27 says, उत्पत्ति 1:27 कहता है, God made man in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। Today God wants to make you and me in the image of God. आज परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बनाना चाहता है। You may say my life is empty, शायद आप कहें मेरा जीवन खाली है, formless, बिना आकार का है, dark. अंधकार का है, But tonight, लेकिन आज रात God is sending His Holy Spirit upon you and me परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आप पर और मुझ पर भेज रहा है to bring life into कि us हम में जीवन लेकर आए and also to transform you into the image of और God. साथ ही आपको परमेश्वर के स्वरूप में वो बदल दे। Yes, God wants you to become like God. परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के जैसे ही हो जाए, Have the image of God, परमेश्वर के स्वरूप में perfect in every way, हर एक तरह से सिद्ध हो जाएं, filled in every हर way, एक तरह से आप भर जाएं, not dark but have the light of the world, Jesus in us. अंधकार में नहीं लेकिन जगत की ज्योति यानी यीशु हम में हो। Tonight your life will change. आज रात आपका जीवन बदल जाएगा। That's what He's going to do first to build your family. सबसे पहले आपके परिवार को बनाने के लिए वो यही तो करने वाला है। He is breathing His Holy Spirit in you. वो अपनी पवित्र आत्मा आप में फूंक रहा है। Will you open your heart? क्या आप अपना दिल खोलेंगे Say, my spirit is sinful, और Lord. ये कहेंगे कि प्रभु मेरी आत्मा तो पाप से भरी है, Fill me with Thy Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, Fill me with Thy Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। I want to have life. मैं जीवन पाना चाहता हूँ, I want to have a perfect life. मैं सिद्ध जीवन पाना चाहता हूँ। Oh Lord, हे प्रभु, fill me with Thy own Spirit, the Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, God's Spirit. परमेश्वर की आत्मा And से, transform me into the image of God. और मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बदल दे। Tonight you sons of men can become the sons of God. आज रात आप जो मनुष्य की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हो सकते There's a हैं। dear brother who has a wonderful testimony how his life changed. प्यारे भाई हमारे मध्य में जिनके पास अद्भुत गवाही है कि कैसे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। Pastor Samuel. पास्टर सैमुअल, Let's listen to him. आइए इनकी गवाही सुनते हैं। Please come, brother. आइए आइए भाई, Come and stand. आइए यहाँ पर खड़े हो जाइए। Please say हाँ, what God did for you. What's your name? बताइए आपका नाम क्या और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। मेरा नाम पास्टर सैमुअल कुमार है। मैं पहले यीशु मसीह के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में एक टेम्परेरी काम कर रहा था। मेरा विवाह 1977 में हुआ और उसके बाद मैं पूरी तरह से गलत रास्ते में जा रहा था। मैं हमेशा सिगरेट और शराब पीता था और इसी के कारण मेरे परिवार में बहुत सी परेशानियां और तकलीफ़ें आई और इन सभी गलत आदतों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूब गया। हम पति और पत्नी में हमेशा झगड़े होते रहते थे और मैं अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। इसी तरह मेरे शादी के 10 साल हो गए परंतु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदला और मेरी कोई संतान भी नहीं हुई। जब मैं जीवन के इस कगार में खड़ा था उसी समय सन 1988 में मुझे पता चला कि हैदराबाद में यीशु बुलाता सेविका की तरफ से एक प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया गया है। तब हमारे कुछ पारिवारिक मित्रों ने मुझे सलाह दी कि आप जाके उस प्रार्थना महोत्सव में शामिल होइए। हम पति पत्नी उस सभा में शामिल हुए परंतु वहाँ पर भी जाकर मैं मैदान में अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पी रहा था और भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन का मजाक उड़ा रहा था। फिर प्रार्थना का समय आया और उस दौरान भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। उस समय भी मैं यही सोच रहा था कि यहाँ सब क्या हो रहा है और मैं उसका हंसी उड़ा रहा था और उस समय भी मैं कुछ समझ नहीं पाया कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है और उसका मजाक उड़ाने लगा। उस समय अचानक एक रोशनी मुझ पे चमकी और मेरे हाथ से सिगरेट फेंका गई और मैं उस समय मैदान में जा गिरा और उसी समय कुछ प्रार्थना योद्धा मेरे पास आए और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना की और उसी समय मुझे यीशु मसीह के उद्धार करने के सामर्थ के विषय में पता चला और उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने लगा और जब मैं घर को वापस लौटा तो मैं परमेश्वर की शांति से भरा हुआ था और मैं एक नया व्यक्ति बन गया था और कुछ ही दिनों में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और मेरे पोस्टल डिपार्टमेंट के कार्य में मेरे कार्य को परमानेंट कर दिया गया और 1994 में परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे एक पुत्र से नवाजा
और उसके बाद 2001 में मुझे जीसस कॉल्स के पावर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि इसका आयोजन कोयम्बटूर शहर में किया जा रहा है और मैं उस इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मिनिस्ट्री में शामिल हुआ। और जब वहाँ भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन प्रार्थना कर रहे थे, मैंने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया और मैंने वहाँ ये निर्णय लिया कि मैं अपना पूरा जीवन यीशु मसीह की सेवा में बिताऊंगा। और मैंने ये भी निर्णय लिया कि मैं अपने गांव नंदी कुरकुर जाके वहाँ परमेश्वर की सेवा करूँगा। और मैं अपने सारे काम को छोड़ के अपने गांव में चला गया और वहाँ जाके मैंने एक चर्च की स्थापना की और जिसका नाम मैंने अगापे चर्च रखा। और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ पे सेवकाई कर रहा हूँ। आज परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को बहुत आयता से वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ एक आशीषित जीवन बिता रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord, praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। What a great God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। He was right in a meeting like this in Hyderabad. ये हैदराबाद में ऐसी सभा में आए थे And right in the meeting he was smoking. और उस सभा में ही ये सिगरेट पी रहे थे। But the power of God came upon him like lightning. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य इन पर ज्योति के समान उतर आई And then filled him with the Holy Spirit. और तब इन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया Changed his life. और इनका जीवन बदल दिया। Today God has given him a place and a ministry and he's a pastor. आज परमेश्वर ने इन्हें जगह दी है, सेवकाई दी है और ये पास्टर हैं। That's what the Holy Spirit can do. पवित्र आत्मा यही तो कर सकता है। He is ready to do it for you. वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। Yes, look to Jesus. हाँ, यीशु की ओर देखिए Say, Lord, और कहे प्रभु my life is sinful, मेरा जीवन पाप में है, empty. खाली है। But as you changed Pastor Samuel and his family, जैसे तूने पास्टर सैमुअल और उनके परिवार को बदला है, change me. मुझे भी बदल दे। Fill me with thy Holy मुझे Spirit अपनी पवित्र आत्मा से भर दे and make me your temple, और मुझे अपना भवन बना, your image, अपने स्वरूप में बना, your image, अपने स्वरूप में, God's image. परमेश्वर के स्वरूप में। God has done it for them. परमेश्वर ने ये इनके लिए किया है, He will do it for you. वो आपके लिए भी इसे करेगा। Right now, अभी इसी समय the Holy Spirit of God is ready to change your life. पवित्र आत्मा तैयार है कि वो आपके जीवन को बदल दे। God has given them beautiful son, परमेश्वर ने इन्हें सुंदर बेटा दिया है, all after giving their lives to Jesus. सब कुछ यीशु को अपना जीवन देने के बाद में। Father, bless them more. पिता इन्हें और आशीष दे, Enlarge your territory. इनकी सीमाओं को बढ़ाते जा। They have honored you before all people. सब लोगों के सामने इन्होंने तेरा आदर किया है, Honor them before all people. सब लोगों के सामने तो इनका भी आदर Bless कर। their son also. इनके बेटे को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How many of you want God the Holy Spirit to fill you tonight? कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज रात आपको भर दे। Open your heart and tell him, Lord, fill me अपना दिल खोले और उससे कहे, प्रभु मुझे भर दे and transform me. और मुझे पूरी तरह से रूपांतरित कर। Now he will fill you. अभी वो आपको भर देगा। My friend, I'm ready to pray for you. मेरे मित्रों, मैं तैयार हूं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God's power is moving amongst us right now. इस समय परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में विचरण कर रही है। Father, पिताजी, we believe that you are the light of the world, Lord Jesus. हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप संसार की ज्योति हैं। Jesus our Lord, there is no darkness in us और प्रभु यीशु हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं है when we have you in our hearts, Lord. जब प्रभु जी आप हमारे हृदयों में होते हैं। Now everyone who is opening his or her heart to you, Lord, Jesus, please enter into their hearts now. इस समय प्रभु जी चाहे कोई भी स्त्री या पुरुष अपने हृदयों को आपके लिए खोल रहे हैं, आप उनके हृदयों में प्रवेश कर प्रभु यीशु। Father, bless them, Lord. पिताजी आप उन्हें आशीष दें, Embrace your children अपने बच्चों को आलिंगन में लें and enter into their heart. और उनके हृदयों में प्रवेश करें। Please live in their lives, Lord, आप उनके जीवनों में जिए प्रभु, and let them see a total transformation today. और आज भी अपने जीवन में एक पूर्ण बदलाव को देखते हैं। Every enticing spirit causing them to follow wrong relationships and the lust of the eyes and the lust of the flesh, we bind it right now and we command those spirits to come out of their spirits right now. हर एक ललचाने वाली आत्मा जो कि उनको वासना और शारीरिक गलत संबंधों के लिए प्रेरित करते हैं, हम उन्हें बांध दें यीशु के नाम से भी बाहर निकल आओ। Let it leave their spirits now in Jesus' name.
इसी समय यीशु के नाम से उनकी आत्माओं को छोड़कर निकल जाए। Every lying spirit, हर एक झूठ की आत्मा, every lust for money, पैसे के लिए हर एक लालच की आत्मा, lust for pleasure, हर एक प्रकार के मनोरंजन और लिप्सा की आत्मा, lust for pride, घमंड की आत्मा, let it come out of the spirits of everyone who is praying for deliverance, Lord Jesus. प्रभु यीशु, हर एक जो इस समय ऐसी सारे आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके नाम से बाहर निकल जाए। Let thy children be free, Lord. उन्हें दया, आपके संतान आजाद हो जाए प्रभु। There is a person called Daya. एक व्यक्ति है जिसका नाम है दया। You have a short name called Daya, आपका छोटा सा नाम दया है, but you have a longer name. परंतु आपका नाम लंबा है। The Lord Holy Spirit is coming upon you right now, Daya. दया, इसी समय प्रभु परमेश्वर की आत्मा आप पर आ रहा है। Your heart is troubled. आपका हृदय व्याकुल है And you say, I have destroyed the lives of so many people. और आप कह रहे हैं कि मैंने अनेक लोगों के जीवनों को बर्बाद किया है। Should I live in this world? क्या मैं संसार में जिंदा रहूं? You are saying that आप ऐसा ही कह रहे हैं because the tormenting spirits are making you lose your peace. क्योंकि हर एक तड़पाने वाली आत्मा जो है आपसे आपकी शांति को खोने के लिए विवश कर रही है। Anchal, अंचल, God heard your prayer, Anchal. अंचल, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। The Holy Spirit is delivering you also from a similar situation. पवित्र आत्मा आपको भी बिल्कुल वैसे ही स्थिति से इस समय बाहर निकाल रहा है। Right now, इसी समय everyone who has become sick and depressed because of sin and sinful pleasures, I command you to be healed right now in Jesus' name. हर एक जो कि पाप और पाप के वासनाओं के कारण से बीमारी में है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय छुटकारे को पाएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, please help them to give up their sins, आप उनकी सहायता करें, वो अपने पापों को छोड़ दें, sinful pleasures, हर एक पाप की लिप्सा को छोड़ दें, wrong relationships, अवैध संबंधों को छोड़ दें, the false pride they have. और झूठा घमंड जो उनके अंदर है, Take it away, Lord. आप उससे दूर करें प्रभु। In Jesus' name, I cast it out of everyone who is watching. हर एक दर्शक के अंदर से यीशु के नाम से मैं उसे बाहर निकालता हूँ। Let peace come into their hearts, Lord. उन्हें दे प्रभु जी, शांति उनके हृदयों में आ जाए। Let there be your light shining in their families from today. आज से उनके परिवारों में आपकी रोशनी चमकने पाए। Krishnan, कृष्णन, you have a terrible chest pain आपको भयंकर सीने में दर्द है and a back pain और साथ ही कमर का दर्द है, and stones साथ ही आपके स्टोन्स हैं, because of worrying and worrying and worrying. आपकी चिंता और चिंता के कारण से। But Jesus says, He is the light of the world for you also. लेकिन यीशु कहता है आपके लिए भी वो इस संसार की ज्योति है, He is transforming you. वो आपको बदल रहा है। You need not die. आपको मरने की आवश्यकता नहीं, Live in Jesus' name यीशु के नाम से जीवित रहो and enjoy His presence. और उसकी उपस्थिति का आनंद लो। Father, heal everyone who needs healing पिता, हर एक जिसको आवश्यक है आप चंगाई दें and give them a new heart. और आप उन्हें एक नया हृदय दें, Honor them. उनका आदर करें। We thank you for blessing thy children. अपने संतानों को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you, dear friends. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Please feel free to write to me your prayer requests at any time आप किसी भी समय अपना प्रार्थना निवेदन मुझे लिखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, or call our prayer tower. अन्यथा आप हमारे प्रार्थना केंद्रों में फोन करें, 24 hours it's open. वो 24 घंटे खुला है। It's open 24 hours to receive your calls and pray for you. वो 24 घंटे खुला है कि आपके फोन को लेकर के आपकी प्रार्थना की जाए। The numbers are on the screen. नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, Please feel free to call. मेहरबानी से आप इन नंबरों पर फोन करें। You can be anybody. आप चाहे कोई क्यों ना हो, We are here to pray for you. हम यहाँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, And the Lord will answer your prayers and do miracles for you. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे और आपके लिए चमत्कार करेंगे। Also join the family blessing plan of Jesus calls to receive your blessing. और साथ ही यीशु बुलाता है कि परिवार आशीष योजना में शामिल हो, कि आप अपनी आशीषों को पाने पाएं।